Now let's move on to the grammar portion of this exercise where we are going to discuss our first exercise related to punctuation. Punctuate the following lines. Life is like a race jockeys went on in which they tire after a while and sat down or get interested in something else instead. The man who keeps on wins the race. So the statement starts with life. अब इसका L हमने कैपिटलाइज करना है. Life is like a race jockeys went on. It means कि ये किसी का कहा हुआ अल्फाज है, तो हमने इसको कॉमाज में रखना है. Life is like a race, कॉमा, यहाँ पे एक नेचुरल पॉज है, jockeys went on, कॉमा. अच्छा, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि सिर्फ लाइफ इज़ लाइक अ रेस ये किसी का स्टेटमेंट है, jockeys went on नहीं है. तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना है. इन विच, अब फिर से यहाँ पे कॉमास दोबारा हमने रखने हैं क्योंकि ये भी किसी के कहे हुए अल्फाज हैं. In which they tire after a while and sit down or get interested in something else instead. अब यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है. The main, T को हमने कैपिटलाइज करना है, who keeps on wins the race. और यहाँ पे फुल स्टॉप क्योंकि स्टेटमेंट फिर से ख़त्म हो गया है. और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इनसे लेकर रेस तक किसी के एग्जैक्ट कहे हुए अल्फाज हैं. तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना है. So we are done with the exercise of punctuation. Now let's move on to the next exercise related to verbs. Complete these sentences with the correct form of the verbs in the brackets. The first statement is, Jockin said that if a man be determined to get anything and stick to it long enough, he would get it. The next statement is, if a man want to be a skating champion of the Sahara and can not afford the money to get there, he would make the money. Now one thing that is common in these sentences is कि ये sentences clearly पता चल रहा है कि conditional sentences हैं. अब यहाँ पे question ये arise होता है that what are conditional sentences? So the answer is that conditional sentences are basically those sentences which dictate condition in one clause while at the other hand they dictate consequence in the other clause. यानी कि हमारे पास दो clause होंगे, कोई एक clause हमें condition बताएगा by using if. जबकि उससे अगला क्लॉज ऐसा होगा जो हमें उसका आउटकम बताएगा. जैसे कि इफ़ यू इनवाइट देम दे विल कम और दे विल कम इफ़ यू इनवाइट देम. अब देख सकते हैं हम लोग कि इफ़ यू इनवाइट देम इज़ अ कंडीशनल क्लॉज, ये एक कंडीशन डिक्टेट कर रहा है, while the second clause which is they will come is the outcome of the condition. Now there are two ways to write conditional sentences. The first way is to write the conditional clause first, then followed by comma, and then you will write the consequence clause. And the second way is to write the consequence clause first followed by conditional clause. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कॉमा एक में क्यों लगाया गया, दूसरे में क्यों नहीं लगाया गया. तो रूल ये है कि जब भी हमने कंडीशनल क्लॉज को फर्स्ट लगाना है तो उसके बाद कॉमा आएगा, लेकिन जब आप कंडीशनल क्लॉज को सेकंड नंबर पे रखेंगे तो उससे पहले कॉमा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता. So basically there are four types of conditional sentences. The first type is zero conditional. The second one is first conditional, then we have second conditional, and the last one is third conditional sentences. Now zero conditional sentences are those sentences which dictate universal truths. Those truths are those which are true for everyone. They are objective truths. यानी कि ऐसे truth को dictate करेंगे जो कि हर किसी के लिए reliable हैं. अब ये zero conditional sentence की पहली पहचान है. The second identification of zero conditional sentence is that they use present tense only. ठीक है, यानी कि दोनों क्लॉजेज में हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें हम कुछ और टेंसेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इसमें प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना होता है. नाउ लेट्स डिस्कस दीज एग्जांपल्स. इफ़ यू गो स्विमिंग, कोमा, यू गेट वेट. अब कोमा इसीलिए लगाया गया क्योंकि कंडीशनल क्लॉज पहले यूज़ किया गया. यू गेट वेट. अब ये एक ऐसा ट्रुथ डिक्टेट कर रहा है जो यकीनन सबके लिए रिलायबल है, यानी कि ये सबके साथ फैक्ट होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. और इसमें आप दूसरी पहचान देखें कि फर्स्ट में भी हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया है और सेकंड में भी हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है. इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इफ़ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर. अब ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और आप देखें कि इसमें भी प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया गया. द थर्ड एग्जांपल इज़, इफ़ यू स्टडी हार्ड, you pass exams. And the second way to rewrite this sentence is, you pass exams if you study hard. And the last one is, ice melts if you put it in the sun. अब इस पे आप गौर से देखें कि यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं हुआ, यानी कि जब भी consequence clause फर्स्ट में लगेगा you cannot use comma after it.
तो यहाँ पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दो बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है, एक टेंस कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में वी ओनली यूज प्रेजेंट टेंस, एंड द सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस कंडीशनल सेंटेंस व्हिच differentiates it from the others one is that it dictates a universal truth. Now let's move on to the first conditional sentence. So when we compare first conditional sentence with zero conditional sentence, तो उसमें हमारे पास दो डिफरेंस आ जाते हैं। पहला डिफरेंस ये है या पहली आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं कंडीशनल क्लॉज में, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस क्लॉज है उसमें हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट है विच डिफरेंशिएट्स फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस फ्रॉम जीरो कंडीशनल सेंटेंस, और सेकंड आइडेंटिफिकेशन इस सेंटेंस की ये है कि ये एक सब्जेक्टिव ट्रूथ को डिक्टेट करता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें डिक्टेट नहीं किया जाता। दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ ट्रूथ और रियलिटी विच इज़ ट्रू फॉर ओनली वन इंडिविजुअल, यानी कि सबके लिए वो रिलायबल नहीं हो सकती। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। इफ़ यू अराइव अर्ली, सो दिस क्लॉज इज इन present tense, comma, you will get a seat at the concert. So you can see the next clause, which is consequence clause, is given in future tense. The next example is if you do not arrive early, so again this clause is given in present tense, comma, you may not get a seat at the concert. अच्छा, एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि future tense के लिए हम लोग will use करते हैं, लेकिन first conditional में हम कभी कभी कॉन्सिक्वेंस में विल के अलावा कैन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम मे भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल इज इफ़ शी स्लीप्स अर्ली, अगेन दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, आई कैन वेक हर अप in the morning. So to conclude, we can say that there are two identification of first conditional sentences. The first identification is that this sentence is used in present tense when we talk about condition clause, while the consequence clause is given in by using either will or can or may. और सेकंड आइडेंटिफिकेशन ये है जो कि इसको डिफरेंशिएट करिए जीरो कंडीशनल से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। तो डिफरेंट इस तरह से हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सिर्फ इंडिविजुअल ट्रुथ की बात करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सो बेसिकली सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की दो आइडेंटिफिकेशन है। द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इज दैट दीज सेंटेंसेस डिक्टेट इमेजिनरी सिचुएशंस। दीज सिचुएशंस आर बेसिकली हाइपोथेटिकल, यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो सिर्फ आपके ख्यालात में हैं, जो कि सिर्फ फैंटेसाइज की जाती हैं, यानी कि ये ट्रुथ की बात नहीं करता। ये ऐसी चीज़ों की बात करता है जो कभी हुई नहीं होती, वो सिर्फ आप सोच रहे होते हैं। एंड द सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज कि ये बेसिकली पास्ट टेंस को यूज़ करके बनाया जाता है। द कंडीशनल सेंटेंस इज मेक बाय यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जबकि जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंस क्लॉज है उसको हम या फिर कुड या फिर वुड यूज़ करके बनाते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक टेंस उसमें यूज़ नहीं किया जा रहा, सिंपली कुड या फिर वुड को यूज़ करके बनाया जाता है। सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स हियर। इफ़ आई वाज 20 years younger, I would run a marathon. अब वो कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं 20 साल ज़्यादा जवान होता तो मैं एक मैराथन दौड़ता। अब देखने की बात है कि ये चीज़ हुई नहीं है, वो फैंटेसाइज कर रहा है कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ऐसा करता, विच मीन्स दैट इट्स नॉट रियलिटी, हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। ये पास्ट के एक ऐसे इवेंट को रेफर कर रहा है जो कभी हुआ ही नहीं है, ख्यालात में फैंटेसाइज कर रहे हैं। और वॉज यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई मेन वर्ब नहीं यूज़ करते, मेन वर्ब का मतलब कोई एक्शन वर्ब यूज़ नहीं करते, जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, इस तरह का वर्ड, तो उस केस में हमने वॉज या फिर वर्ब को मेन वर्ब का रोल प्ले करवाना होता है। होता वह हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इन केसेस में ये मेन वर्ब का रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ आई फाउंड हर बैग आई वुड गिव दैट बैक। इफ़ यू डिड नॉट स्मोक यू वुड बी अ रिच मैन, यानी कि आप वुड या कुड के अलावा वुड बी या फिर कुड बी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कंडीशनल सेंटेंस व्हिच इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। नाउ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इज क्वाइट सिमिलर टू सेकंड कंडीशनल सेंटेंस in a way that it also dictates hypothetical situations which did not happen. You simply fantasize them in your mind, यानी कि imaginary situations. दूसरी बात कि ये सेंटेंस हम लोग जब कंडीशन बनाते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी कि हैड यूज़ करके। बट आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि लॉजिकली इसका डिफरेंस क्या है। टेंस का तो डिफरेंस है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग क्या डिफरेंस है। तो लॉजिकली एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक यूज़ होती है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो ये
कि आपने याद रखना है कि जब भी हम सेकंड कंडीशनल को रेफ़र कर रहे हैं तो कंडीशन भी पुरानी हो चुकी होती है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस आप लोग आज भी भुगत रहे होते हैं। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो आज में ये होता, यानी कि उसका कॉन्सिक्वेंस अभी भी प्रेजेंट में ही है। लेकिन जब हम थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं तो उसका कंडीशन बहुत पुराना हो चुका होता है और कॉन्सिक्वेंस भी आपके हाथ से जा चुका होता है, यानी कि ये टोटली पास्ट में होता है। दूसरा जो सेकंड कंडीशनल है वो ऐसे ट्रूथ की बात कर रहा है जिसके कॉन्सिक्वेंस को आप आज भी भुगत रहे होते हैं। लेकिन थर्ड कंडीशनल में जब हम कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंस को भी आप भुगत चुके होते हैं, यानी कि वो भी बहुत पुरानी बात होती है। तो कंडीशनल में हमने जब हम कंडीशन क्लॉज यूज़ करें तो उसमें हमने हैड यूज़ करना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। जबकि हम कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो उसमें वी हैव टू यूज़ would have, could have, यानी कि हमने would और could के साथ have लगा देना है। Now let's discuss some examples here. If you had studied harder, you would have passed the exam. अब देखें had studied है यानी कि past perfect से है और यहाँ पे हमने would के साथ have लगा दिया। इसी तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल है, If I had not bought a new car last year, we could have gone on holiday. So this is all about third conditional sentence. I hope कि आपको इसकी समझ आई होगी। Now let's move on to the exercise related to these questions. Complete these sentences with the correct form of the verbs in brackets. Jochen said that if a man be determined to get anything and stick to it long enough, he get it. अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें if से लेकर it तक, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस चीज़ का खुला ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो फर्स्ट कंडीशनल लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं। यानी कि अगर कंडीशन क्लॉज में कोई टेंस यूज़ हुआ होता, सपोज उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ होता, तो हमें पता होता कि हम कॉन्सिक्वेंस में सिर्फ हम विल लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, यानी कि वो फर्स्ट कंडीशनल होगा। अगर कंडीशन सेंटेंस में हमने पास्ट इंडेफिनेट यूज़ किया होता तो हमें पता होता कि कॉन्सिक्वेंस वुड बी या शुड बी या कुड बी या खाली वुड कुड के साथ हो सकता है, यानी कि वो सेकंड कंडीशनल होता। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया होता तो हमें पता होता कि ये सेंटेंस बेसिकली इट कम्स फ्रॉम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोई टेंस यूज़ नहीं किया, विच मीन्स कि हमारे पास खुला ऑप्शन, हम इसको फर्स्ट भी बना सकते हैं, सेकंड भी, थर्ड भी। लेकिन एक चीज़ से उन्होंने हमें बाउंड किया है, वो ये है जॉकिन सेड। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेज, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो उसके बाद आने वाले जितने भी क्लॉज हैं वो भी पास्ट में ही होते हैं, विच मीन्स कि ये सेंटेंस या तो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फर्स्ट में ये नहीं आ सकता। जॉकिन सेड दैट इफ अ मैन वॉज डिटरमिन्ड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ ही वुड गेट इट। इट मीन्स के दिस सेंटेंस इज फ्रॉम second conditional sentence. The second example is, if a man want to be a skating champion of the Sahara and cannot afford the money to get there, he would make the money. अब basically this sentence is taken from a story जो कि past में हो चुकी है, इसलिए हम इसको past tense में ही बनाएंगे। If a man wanted to be a skating champion of the Sahara and could not afford the money to get there, he would make the money. Now the reason that why I did not change the form of verb of the word make वो ये है कि whenever we use a verb after a modal verb we do not change the form of the verb. अगर modal verb के साथ कोई और auxiliary verb लगा होता जैसे कि have, तो हम फिर main verb की form change कर सकते हैं। लेकिन अगर could, will, shall के बाद डायरेक्टली कोई मेन वर्ब लगा है जैसे कि eat, sleep, तो उसकी हम फॉर्म चेंज नहीं करते, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है। द थर्ड स्टेटमेंट इज he dash a skating champion if he really give all his time to it. He would be a skating champion if he really gave all his time to it. So this is from second conditional sentence. The fourth statement is, it was thought that the glory of the country would be increased if the post of the court acrobat was created. So again this is from second conditional sentence. And the last statement is, it was decided that if a good athlete could be found, they would make him court acrobat. So student, we are done with the exercise related to verbs. I hope you have understood this exercise very well. Now let's move on to the next exercise where we are going to use some phrasal verbs to make some sentences. Use the following phrasal verbs in your sentences. First word is get in.
जिसका उर्दू में मतलब है दाखिल होना. So we can make a sentence by using this word in this way that how did you get in here without taking our permission. The second word is get out, जिसका उर्दू में मतलब है बाहर निकल जाओ. So इसका sentence इस तरह से हो सकता है The traffic police officer asked the young boy to get out of his car and showcase his license. The next word is get on, जिसका उर्दू में मतलब है सवार होना. So we can make a sentence like this. She was supposed to get on the train to Karachi at 9 a.m. in the morning, but she was late. And the last phrasal verb is get off, जिसका उर्दू में मतलब है उतरना. So a sentence by using this phrasal verb can be like this. The street is narrow, so we need to get off the car and walk on foot. So I hope कि आपको इसकी भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी. Thank you.